Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome to another episode of Crick Bits and Pieces. Today, we are going to talk about the upcoming blockbuster test series between India and Australia, which is popularly known as Border Gavaskar Trophy. I mean, popularly, यही नाम रखा है उसका. So that is that. So this is primarily उसका माहौल बनाने के लिए हम लोग आज बात करेंगे, right? और माहौल बनना already शुरू हो चुका है. There is Mr. Healy has shot the first shot, which is like कि अगर इंडिया fair pitches बनाएगा तो Australia will win the series. Otherwise, if it's a spin friendly, so it will be India, right? So Ian Healy's logic states that he does not want his batters to learn how to play spin, but he wants the goodness and wellness of Eastern countries to provide a pitch that suits their batters somehow. And that's what fair means to Mr. Healy. Apart from Mr. Healy, there is another, the bigger, the more respected Bitch Botham has come out and said, Indian audience are not watching tests coming from an Englishman who hosts Ashes series in an empty stadium. So that's a little rich, but yeah. And he's a respected bitch because he has the knighthood from the cruelest monarchy in the history of mankind, right? So that's where his respect is drawn from. So that's what those are the two shots that has been fired till now. हमारी तरफ से it's just Ravichandran Ashwin and that's enough, right? So that's where we are at in terms of the Border Gavaskar Trophy. So with that context, right, opening up the floor for anyone who wants to take it away. By you first. Now, if talk is about firing the shots, and if the talk is about fair cricket, I would like to remind Ian Healy about the things that he did on the play, on the ground. What he, his famous cheating incidents, what he did to Jonty Rhodes in 1997 or in 1992, the way he had appealed for the wicket of Brian Lara. So I don't think the Australians have any right to talk about fair, unfair. And as far as the wickets are concerned, I think we don't need unfair pitches to defeat them. We had gone there. We defeated them in Australia in their own backyards. And that also with a second string team when half of our team was injured and out. So I don't think we need... to doctor our pitches to defeat them. And plus, apart from that, I would also like to remind Mr. Healy that last time, 5 years or 6 years ago, when they had come to our country in Dharamshala, it was a green top that was presented to them and they got defeated fair and handsome. Similarly, if you look at Bangalore's pitch, it was a very good cricket pitch. Mr. Parashar, if you remember, both of us had gone to watch that match and had seen that beautiful partnership between Ajinkya Rahane and Chiteshwar Pujara. So, see, Australians have to speak. यही समय है, थोड़ा सा काम पानी मिलता है तो ठीक है, बोलने दीजिए. एंड बहुत बार जवाब देंगे. अभी नेक्स्ट 30 मिनट्स बोलते चलेंगे. मिस्टर पराशर, प्लीज थोड़ा आप बोलिए पहले. I mean, this is very typical of Australian fans, their ex-cricketers. Right before a series starts, there's always, these usual suspects who come out with incendiary statements of all kinds. I think we still haven't gone to Glenn McGrath yet because he hasn't spoken anything yet. But I'm pretty sure Glenn McGrath is the next one who's going to come into the mix of things with the prediction of 4-0. It doesn't matter who's playing, where the matches are happening. You ask Glenn McGrath who's going to win. Australia wins it 3-0, 4-0, clean sweep, right? It's a different story that more than half the times that prediction doesn't come true, because Australia is not the same team as it used to be back in the early 2000s. The world cricket has shifted very dynamically. We are no longer a side back in the 90s that used to tour Australia and come back, 3-0, with Sachin holding one end and the other end just, a very frequent rotation of batsmen happening on the other side. We are not that side anymore. I think we have a really, really good side. We've been playing some amazing cricket in the past 15 to 20 years.
while on tour, of course, when it comes to home games, it's always been, our forte. We've always won for the most part, barring maybe one or two exceptions here and there. Now, coming back to Ian Healy's statement, who gets to decide what's a fair pitch? And why does Ian Healy get to decide that? Are spinners not a part of the game anymore? Like, are we saying that Shane Warne, one of the most legendary spinners who gave half his caps to Ian Healy, doesn't matter in Test cricket anymore? Of course, spinners have a place. Of course, they are also bringing good spinners. I'm looking forward to watching Nathan Lyon bowl in Indian conditions and do well. But to set this ground even before the Test matches have started, that we are expecting dug up wickets, and we've talked about this internally, in our chats too, that pitches do need a relook on our side to make the matches more even. But to cast aspersions on the home countries and to treat us as a Bangladesh or a Sri Lanka, which is basically what Ian Healy is trying to do here, that we are no better than a Bangladesh or a Sri Lanka when it comes to hosting Test matches. I think that's it's misdirected, and he would be better off guiding his young team and how to dodge the conditions in India instead of making these inflammatory statements. Yeah, so of course so all of it makes sense, and so the 4-0 statement that comes out, right? I think they have been conservative this time, because last time every one of them had to eat shit, right? so that's the reason and nothing more. They have not changed as a person. They are still as shit as they were 2 years back. But only thing that has changed is that we have shown them. So hopefully that will come up probably after a match or two, if they win at all, or come close for that matter. Right. The other the more fuel to the fire has been also added by the way Australian team is preparing. Right. So Australian team they cried foul, saying that the practice matches that we get in India are played on a very different kind of pitches that we play the Test match on. I don't know what the expectation is. Do they want the practices match to be a Test match? I don't know. If that is then तो खेलो ना सीधे पहला टेस्ट ही खेलो ना. How do you play a test match on the picket that you? How do you play a practice match on the same wicket? That does not work that way. But जो भी वो उनका रोना था. उसके बाद what they have done is they have used some contacts in RCB to get practice in a town out at the outskirts of Bangalore. It's called Allur. और वहां पे वो लोग जाके पिच खोदा है थोड़ा सा और उस पे बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है. And they have also gone ahead and hired a spinner, I think from Madhya Pradesh or somewhere, who has an action very similar to Ravichandran Ashwin, right? So anyone who can imitate action of Ravichandran Ashwin is the practice bowler for Australians. So that's how stupid they are, and that's why they lose. Even when they doctor pitches up to their requirement and their bowling attack, and that's what happened with them at Kaba and all the places last year. So that is where the status is in the pre-series. हम आपको बताते हैं, हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा. भाई जो मिल जाए. वही बात है कि हम ग्लेन मैकग्राथ का प्रैक्टिस करने आविष्कार साल्वी को बुला लिए, बोले कि भाई वैसे ही आना और कुछ मत करना, हम समझेंगे तुम ग्लेन मैकग्राथ. मतलब ठीक है भाई, मतलब अश्विन भी सोच रहा होगा कि भारी इंसल्ट है 450 विकेट लेने के बाद मेरा डुप्लीकेट लाके. तो वही बात हो गया, सलमान खान का डुप्लीकेट करा के बोल रहे हैं दबंग बना लेंगे. कर लीजिए जो करना आपको. देखिए, फेयर पिच ऑस्ट्रेलिया बनाता है, साउथ अफ्रीका को 2 दिन में डे 2 पे अभी जस्ट पिछले ही 1-2 महीना पहले ना हराया. मतलब अगर स्कोर कार्ड ऐसे था, 152 फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका बनाया था, 218 ऑस्ट्रेलिया बनाया, 99 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया, 35 पे 4 ऑस्ट्रेलिया. डे 2 सेशन 3 ऑन अ वेरी फेयर पिच गाबा पे ऑस्ट्रेलिया जीत गई. इयान हिली को यही पिच हम अगर मोटेरा में दे देंगे और मेरा स्पिनर पहला ओवर से अक्षर पटेल रहेगा एक साइड, दूसरे साइड से अश्विन न्यू बॉल की तरह, तो बोलेगा ये अनफेयर था. क्या कौन? एकदम वही वाला बात है जो बोल रहे थे पीपी भाई, हु गिव्स हिम द राइट टू डिसाइड व्हाट इज फेयर और अनफेयर? व्हाई आर द स्पिनर्स? अगर let's say in 4 years, 5 years, we prepare 1 or 2 pitches which are totally in favor of the spinners, what's wrong in that?
भाई पाकिस्तान की तरह पट्टा तो नहीं बनाते कि पांचवा दिन भी मार रहा है और बॉलर से बोल रहा है इससे अच्छा तो हम बैट्समैन थे। अरे हमारे पिचेस में आप मतलब अगर पिछली बार का चारों टेस्ट मैच देखा जाए, रांची वाला टेस्ट मैच जो लास्ट टाइम ये लोग आए थे उसमें लास्ट डे तक मतलब नहीं आया, नहीं तो मानते हैं पुणे थोड़ा ज्यादा हेवीली लोडेड था स्पिनर के लिए, बट धर्मशाला बैंगलोर बहुत अच्छा ग्राउंड, बहुत अच्छा पिचेस पे था, आराम से मैच पूरा हुआ। आई एम सॉरी। और मतलब फोर्थ फिफ्थ डे तक खींचा। तो ये लोग पहले से बस अपना एक्सक्यूजेस खोज रहे हैं, मेरे हिसाब से पहले से सरेंडर बोल चुके हैं। और लास्ट थिंग अभी बता देना, प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। 9 प्लेयर इनका 30+ है, एज में 30+, हमारा 10 है। फिर भी हमको इस ग्राउंड का पता है, गर्मी भी पता है कितना, इनका 9 जो है ना झुलस जाएगा नागपुर में फरवरी में ही। तो ये लोग सोच रहा है कि भाई सीधे ग्राउंड में उतारेंगे, पांचों दिन टिक जाएगा, कोई डेंजर नहीं लेना। 2 टूटल फुटल ही आ रहा है, एक आपका स्टार्क, दूसरा आपका वो ग्रीन, कीपर एक ही है कैरी, उसके बाद हैंड्सकॉम को बनाएंगे कीपर। तो 4 टेस्ट मैच 20 दिन का है इनके पास पोटेंशियल। वार्नर और उस्मान ख्वाजा का कंपटीशन है, कौन पहले 37 ईयर्स ओल्ड हो जाता है। वो लोग क्या खेलेगा अभी आपका कोई भी प्रैक्टिस, डायरेक्ट मैच खेले, नॉट मोर देन दैट। मिस्टर पीपी प्लीज। यार आई थिंक पता है इस टाइम पे ही आई एम मिसिंग द सेम वॉइस ऑफ समबडी लाइक अ शेन वॉन। अभी शेन वॉन रहता ना तो वो जवाब दिया रहता है ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर लोग को कि यार मतलब एक्सक्यूजेस खोजना बंद कीजिए एंड थोड़ा फोकस कीजिए। जहां तक रही बात की लो रविचंद्रन अश्विन का डुप्लीकेट उठा के लेके आए, मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कुछ हो नहीं सकती। अरे उसमें भी एक और बहुत फन फैक्ट है पीपी, सॉरी टू इंटरप्ट बट नहीं बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। सुन लो। आज ये भी रिपोर्ट आया है कि वो स्पिनर जो है आज 2 बार बोल्ड मार दिया स्टीवन स्मिथ को और 1 बार स्टंप करा दिया, ठीक। although in all fairness, the current team 11 against 11, Australia has a better batting against spin than India. The difference is in the quality of spinners that we have and they have. They are not going to face the spinners that they usually face, right? Yeah. So that is the sorry people. Go ahead. नहीं बट नहीं वही सही बात बोल रहे हो, मतलब यूर ऑन टू समथिंग देयर राइट कि देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट क्योंकि आई डू फील कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप दैट इज कमिंग हियर टू योर पॉइंट इज अ प्रीटी डिसेंट वन। हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक इज गुड एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार अपना जडेजा खेल पाए, स्क्वाड में है ना वो, बस इंजर्ड ना हो जाए, खेले लाइक ही ब्रिंग्स हिज मैच फिटनेस, मतलब फिट होकर वो पूरा टूर्नामेंट खेले। तो between Ashwin and Jadeja bowling from either end, it is very comparison करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन लोग को थोड़ा खराब लगेगा। इट इज वेरी रेमिनिसेंट में विकेट में तो पोस्ट लंच एक तरफ से मिगरा को लगा दो, दूसरे तरफ से शेन वॉर्न को नहीं लगा दो, विकेट तो निकाल ही दे लड़का लोग। और इन इंडियन कंडीशंस अश्विन एंड जडेजा का पेयर is as lethal as any other bowling unit and bowling pair out there. Yeah. So I feel Australian batting is equipped to handle it, like the likes of Warner and Khwaja, ये लोग इंडियन कंडीशन में खेले हैं। इनफैक्ट somebody like Khwaja स्टेटमेंट्स तो बहुत दे रहा है वो बाहर में बैठ के, थोड़ा खराब भी हमको लग रहा है बिकॉज ख्वाजा का बैटिंग हमको अच्छा लगता है। सो आई एम होपिंग दैट ही कैन गेट सम रन्स। लेकिन अगर आप पहले से इतना सरेंडर मार दोगे कि नहीं यार हम लोग प्रैक्टिस मैचेस हम लोग नहीं खेल रहे हैं, खेल के क्या मिलेगा यार, हम लोग को अच्छा बॉलर ही नहीं देता है ये लोग, तो यार फिर आप मतलब इट्स नॉट द राइट वे टू अप्रोच थिंग्स, राइट। बाकी जहां तक रही तुम्हारी बात, आई वुड लव टू पिवट टू मैन टू मैन जो हमारा स्क्वाड टू स्क्वाड कंपैरिजन होगा, हाउ वी आर फेयरिंग, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ये वैलिड था कि batting wise and the current form that they are bringing in, Aussies look like the better unit marginally, but I would like to bring you in terms of what is your take on that? Rohit bhai, what do you think? अजीत भाई आप शुरू करिए, फिर हम आएंगे। नहीं तो अदर पॉइंट तो लाइनअप में हम लोग जाएंगे अभी, बट आई वाज ट्राइंग टू से कि मैन टू मैन में सो देयर बैटिंग इज अ लिटिल बेटर अगेंस्ट स्पिन स्पेशली, राइट, बिकॉज दे आर ख्वाजा काफी अच्छा खेलता है स्पिन को, स्मिथ अपने आप को इंडिया में कई बार प्रूव कर चुका है ऑलरेडी, राइट, ही हैज स्कोर्ड हेवीली अगेंस्ट अस, तो वो 2 क्वालिटी बैटिंग है उनके पास। उसके अलावा डेविड वार्नर है,
ही कैन लबुशेन भी है, ऑफ कोर्स लबुशेन इज डायरेक्टली स्टीव स्मिथ। तो ये इनका टॉप 4 अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉप 4 है। इवन ट्रेविस हेड रन्स बना के आ रहा है, पर देखिए नहीं बना पाएगा यहाँ, इंडियन पिचेस पे प्रूवन नहीं है। Travis Head. Travis नहीं Head- देखिए मेरे हिसाब से, देखिए ये वार्नर कभी इंडियन पिचेस पे नहीं चला है। हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं चलेगा ही, लेकिन वार्नर इज नॉट कि भाई आपको प्रूवन है कि ही विल मेक अ लॉट ऑफ रन्स, दैट्स वन थिंग। उस्मान ख्वाजा एंड मैट रेनशॉ, इनके पास दो और ऑप्शंस हैं, जिसमें उस्मान ख्वाजा ही पहले 2-3 टेस्ट मैच तक चलेंगे, अगर रन बनाते रहे तो चौथा भी खेलेगा, नहीं तो रेनशॉ को एक बार ये लोग सोच सकते हैं। अगेन उस्मान ख्वाजा टेस्ट मैच में बहुत अच्छा इंडिया में मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं होगा उस्मान ख्वाजा का, वनडे एंड ऑल का बात अलग है। डेफिनेटली नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, या लबुशैन का नंबर 4, मतलब 3 पे लबुशैन और 4 पे स्मिथ, दे वुड बी वेरी वेरी गुड। लास्ट टाइम स्मिथ अपने दम पर पुणे टेस्ट मैच निकाला था, कोई डाउट नहीं है, और उसके बाद वाले भी ग्राउंड में मतलब उसका अलग परफॉर्मेंस था, मतलब उसका बैटिंग ही अलग लेवल पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, 5वें नंबर पे अब इनके पास है हेड, एक तो लेफ्टी है, अश्विन तो ऐसे ही लपलपा रहा होगा, बोल रहा होगा कि भाई तो मिल गया मुफ्त का एक और। 6ठे पे कैमरून ग्रीन शायद पहला मैच नहीं खेलेगा, तो ये लोग शायद हैंड्सकॉम्ब को खिलाएं, क्योंकि इनके पास अभी ऑप्शंस इनको देखना है कि किसको रखें। एलेक्स कैरी लास्ट टाइम मैथ्यू वेड खेला था, इस बार एक चेंज उनका हुआ है, एलेक्स कैरी है। देखिए एक चीज आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, लास्ट टाइम से इन लोगों का 3 मेजर प्लेयर गायब हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल सेंचुरी मारा था रांची में, ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग भी दे देता था, जो ट्रेविस हेड बोलेगा हम भी कर देंगे, लेकिन मैक्सवेल भी इंडिया में बहुत खेला हुआ है, उतना हेड के पास नहीं है। लास्ट टाइम दोनों मार्श बंधु भी थे, मिचेल और शॉन, और इस बार उनकी जगह पे कैमरून ग्रीन एक जगह आ रहे हैं मिचेल की जगह पर, और शॉन मार्च की जगह हैंड्सकॉम्ब पिछली बार भी था, मेरे हिसाब से रांची में अच्छा भी खेला था, और वो है। तो हम मानते हैं बैटिंग, लेकिन इनके बैटिंग का बहुत डिपेंडेंसी हमको लगता है स्मिथ और लबुशेन पे होगा, जिसमें लबुशेन बिल्कुल मतलब एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में अश्विन उस पर हावी था, भारी था, बहुत भारी था, भारी। इंडिया में अब देखते हैं अश्विन क्या कर देते हैं। अश्विन क्या, जडेजा है ही, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हम तो अभी बोलते हैं पहले बॉलिंग ही अटैक डिसाइड कर देते हैं, पहले बॉलिंग अटैक ही डिसाइड कर लिए, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, एब्सोल्युटली दैट मेक्स सेंस। और अपने बॉलिंग स्टाइल, आई थिंक अपने टीम में भी रोहित भाई, देयर आर टू spots that we are still trying to fill in, right? Of course, Rishabh Pant is a big one, and एक लोअर मिडिल ऑर्डर में अपना श्रेयस अय्यर जो रोल कर रहा था उस जगह पे, तो 5 और 6 का बैटर अपना, राइट, जिसमें से एक जो कीपिंग कर पाए, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें बस एक पॉइंट और जोड़ेंगे, हमको ओपनर पे भी केएल राहुल और शुभमन गिल में है। इसका लॉजिक मेरा क्या है कि रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही। केएल राहुल लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस था, सबसे अच्छा बैट्समैन में थे, एक गोल्डन पैच, पर्पल पैच चल रहा था, स्कोरिंग हेवीली, 50s पे 50s मार रहे थे, बट दैट पैच ही हैज लॉस्ट राइट नाउ, एंड शुभमन गिल इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। सो आई पर्सनली थिंक कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल शुड ओपन। ऑफ कोर्स थर्ड पे पुजारा का कोई डाउट नहीं है, फोर्थ पे कोहली पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, अब फिफ्थ पे यहां पे श्रेयस अय्यर नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग टीम वाइज चले तो सूर्य कुमार यादव को दीजिए मौका, दैट इज दी प्लेस जहां पर उनको मिलना चाहिए। 6ठे पे कीपर पे अब आता है, तो ईशान किशन और दूसरे वो है ना भरत, केएस भरत। ईशान किशन T20s में बहुत खराब अभी परफॉर्मेंस दिए हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मतलब ही इज द राइट पर्सन फॉर दैट रोल, क्योंकि कीपिंग भी देखना है, इंडियन पिचेस पे कीपिंग में भारत इज वे बेटर। और यहां पे मेरा लॉजिक इसलिए भी है क्योंकि देखिए 7 पे जडेजा, 8 पे, एक सेकंड के लिए सोचिए, अक्षर पटेल, और अगर किसी भी दिन हम लोग अश्विन और कुलदीप भी खेल रहा है, मान लीजिए एक मैच में ऐसा है कि 4 स्पिनर के साथ उतर गए, फॉर अ सेकंड इमेजिन, तो 3-3 लेफ्टी तो है ही आपके पास, तो अश्विन, ये जरूरी नहीं है कि आपको ईशान किशन का लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी चाहिए। तो
मिनिमम 2 लेफ्टी तो मिलेगा ही आपको, अक्षर पटेल, जडेजा, या जडेजा कुलदीप नीचे। तो मेरे हिसाब से आई वुड गो विद केएस भारत पे रादर देन दिस, बिकॉज एनीवे 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन, 9 पे अक्षर या कुलदीप इज गिविंग अस एनफ बैटिंग लाइनअप आल्सो। दैट्स द थिंग। Correct. भाई Hypothetical scenario, what happens if Pujara doesn't fire in the first 3 test matches? Do you see him playing all 4 test matches given the pressure that he's under coming into this tournament in terms of getting runs? I let me first open with that question कि पुजारा के ऊपर बहुत question marks रहे हैं recently. So what is your take on that? At what point does our team management make that call? Pujara out with someone else. Do you think that's something that can happen through in the middle of this tournament? Or do you see that something that happens post hoc? देखिए, मेरे हिसाब से बांग्लादेश में तो पुजारा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। Sure. He was But one of the Bangladesh- assured batsmen. In fact, he was better than Sure. Kohli, to be Sure. fair. कोहली से ज्यादा बेहतर थे। So that's one aspect. अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए सिर्फ पुजारा को स्टैंड अलोन सोच रहे हैं, and if he doesn't fire in the first 3 matches, what will determine is what is the performance of other players. अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि बाकी सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मे बी 3 नंबर पे हो सकता है केएल राहुल या शुभमन गिल को लाया जाए, या सरफराज खान को, क्योंकि हमारा जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है वो सिर्फ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए हुआ है। So maybe Sarfaraz Khan is sitting outside waiting like anything कि भाई एक मौका दो। So that is another thing. और श्रेयस अय्यर invariably is available after the first match. Right. So अगर मान लेते हैं for a second hypothetically कि नंबर 5 पे सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया पहले मैच में अगेंस्ट, चूंकि इनकम्बेंटेंट आपका यही है श्रेयस अय्यर, तो श्रेयस अय्यर वापस आएगा, और बाद में अगर पुजारा निकलते हैं तो फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे उस जगह पे। The reason I bring up Pujara is because द्राविड से पुजारा का ट्रांजिशन बहुत सीमलेस था हम लोग के लिए। It was like Pujara was a man who was being groomed by Dravid himself कि ठीक है मेरा legacy को he is taking forward, which he did. He has been one of the best number 3 batsmen that India has had. Yeah. So my question is, all the names which are being thrown into the mix, right from Surya Kumar Yadav to Shreyas Iyer to all the other people out there, Sarfaraz Khan, who do we see as somebody who takes that legacy forward? Because I honestly feel Pujara's place in this team, if he doesn't get runs, is going to be at risk. Now, how our team management handles that will be a question. Do we give him the long rope for the 4 test matches, give him all the opportunities, and then decide कि नहीं भैया पुजारा अब हो गया आपका? क्योंकि getting runs in Bangladesh, I hear your point, ठीक है बांग्लादेश में रन बनाया है वो, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप पिछले कुछ टूर्नामेंट से देखें अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स अंडर इन डिफिकल्ट कंडीशंस, पुजारा हैज काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड, एंड उसके अगेंस्ट मीडिया में हर जगह नाम मतलब क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए। एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम मैनेजमेट जो हो गया, द लाइक्स ऑफ द्रविड़, दे आर नॉट गोना बी स्वेड बाय व्हाट इज बीइंग रिटन इन द मीडिया, लेकिन स्ट्रगल तो है ना यार। So at some point we have to make that call. We are talking about the 37-year-olds in Australian team. At some point we have to talk about our 36, 37-year-olds as well. And what does that transition look like for them? So that's why I was just thinking about that. नहीं, so पुजारा वाला प्रेशर वाला जो बात है ना, वो ट्रू है। आई थिंक he was dropped also. Pujara, Rahane both be dropped, right? But then what worked well for Pujara was that he went unsold in the IPL and he went to county and he scored runs in heaps, right? So that made his comeback easy, and after coming back he has been doing well, right? So even Bangladesh में भी Parashar, there was one match जहाँ पर बहुत tight situation में 80 निकाल के दिया था, right, which was very very crucial 80. तो ठीक है बांग्लादेश है, but still no one was able to get those runs, but he was. So वो quality runs दे रहा है, so hopefully, but again पुजारा का the way we saw कि द्रविड़ को पुजारा रिप्लेस करेगा, वैसा अभी पुजारा का रिप्लेसमेंट नहीं दिख रहा है हम लोगों को, फॉर श्योर नहीं दिख रहा है। But so that's what I wanted to just pinpoint. But carry on. नहीं, so that I see as a risk कि हम लोग के पास वो जो बैटिंग में जो होता है ना कि 3 का रिप्लेसमेंट, अब जैसे विराट कोहली की अगर बात हो रही है, 4 नंबर पे विराट कोहली है, 4 नंबर पे सचिन था उससे पहले, भाई वेरी बिग शूज टू फिल, बट कोहली डिड।
who do we see going forward? Matlab, we have to start Shubman Gill. thinking about that. Shubman Gill at 4. Shubman Gill at 4. That's Everybody says he's better suited in middle order. Interesting. भाई Yeah. टॉप ऑफ द ऑर्डर पे तो जो रन निकाल के दे रहा है, like I find it hard to One day and test match will be very different. One days and T20s में every time top of the order he preferred है. But in test matches, he still has to score that consistent runs. He has scored a bit, but no, but just watching him bat in that last Border Gavaskar जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, and the runs that he got at the top of the order, opening the batting. absolutely. But then it might be that he will get more in the middle order. More in That's the the thinking. Sure. And the thing is कि देखिए आप जो बात कर रहे थे ना, पुजारा का अभी at this moment there is no one in the Indian whole domestic circuit जो उस जगह को ले सके. हनुमा विहारी 16-17 टेस्ट मैच मिला है, 31-32 के एवरेज पे है. बट सारा टेस्ट मैच बाहर खेला है. एब्सोल्युटली. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है हनुमा विहारी के साथ कि पुजारा के पास एक चीज था ना कि पहला 70 बॉल में 15 रन, लेकिन अगले 140 बॉल में 100 रन भी बन सकता है. तो बड़ा तेजी से एक्सेलरेट करता था, रन बनता था. इनफैक्ट पुजारा का 5 साल से स्कोर गिर गया, नहीं तो 50 के एवरेज पे था. विहारी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि पहले 70 बॉल में 15 रन और 22 पे आउट. तो वो चीज दिख नहीं रहा. रन अल्टीमेटली तो रन दिखाएगा ना, रन दिखता है, रन नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है. हमको लगा एक चीज ये कि मे बी नॉट एग्जैक्टली पुजारा बट अभिनव ईश्वरन जो है आपके जो लाइनअप में अगले ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन, ही कुड बी समबडी जो कि क्योंकि ओपनर है तो नंबर 3 ओपन दोनों ही बराबर के लमसम में है. तो ही इज वन बिकॉज इवन रोहित शर्मा इज 36. उसका भी सब रिप्लेसमेंट तो हम लोग को सबका चाहिए, सब लोग अपना एक्स्ट्रा पे चल रहे हैं, तो वहां भी हम लोगों को चाहिए. तो ओपनर ही अगर आपका 1, 2, 3 में रहे तो दैट इज अनदर थिंग दैट. लास्टली मेरे हिसाब से पुजारा शायद इस सीरीज में प्रेशर में नहीं रहेगा बिकॉज लास्ट 5 मैच में 45 का एवरेज, सेंचुरी इन बांग्लादेश, एज अजित भाई सेड 80 इन अ वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि बांग्लादेश सेकंड मैच ऑलमोस्ट हरा दिया था हम लोग को. थैंक्स टू श्रेयस अय्यर एंड अश्विन हम लोग बच के निकल आए, नहीं तो भाई बांग्लादेश पैशन पे वो लोग पागल कर देता वो लोग अपने पिच पे. No, so the sole reason that I brought it up, and maybe we can move on from this topic, but the sole reason that I brought it up was कि आज से 15 साल पहले जब हमारे यहाँ स्क्वाड होता था, सीनियर्स होते थे टीम में, तो पुजारा हमेशा स्क्वाड में रहता था. द्रविड़ की छत्रो छाया में रहता था, 5 नंबर 6 नंबर पर बैटिंग कर रहा होता था, एंड उसके बाद ग्रेजुअली प्रमोट होके ही रिप्लेस द्रविड़. आई डोंट सी दैट हैपनिंग 3 नंबर के लिए with our current squad. That's it. And That's right. like we need to be looking at that for the future कि अगला बॉर्डर गावस्कर में भी तो अच्छा टीम पुट अप करना है ना. That was the sole point that I brought this up, but we can move on. Just one last point. मेरे हिसाब से ये शायद लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है. हाँ, इसके बाद ये नाम ठीक है, नाम बदल देंगे. फॉर्मेट चेंज होगा और 5 मैच का सीरीज होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया. बट ठीक है. सो जस्ट टू इंडिया के स्क्वाड में आई एग्री विद रोहित भाई पॉइंट कि हम लोग को केएस भरत चाहिए एज अ कीपर, क्योंकि नाइदर केएल राहुल नॉट ईशान किशन कैन गिव द लेवल ऑफ कीपिंग दैट वी नीड. अगर पिच थोड़ा भी टर्न होना शुरू हुआ, राइट, अगर आप जो कि होगा, हेली साहब कुछ भी बोले, पिच तो टर्न होगा भाई. वो ठीक है, बट 5 दिन का पिच बनाते हैं कम से कम हम लोग, विच इज समथिंग दैट ऑस्ट्रेलिया हैज फॉरगॉटन. टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 5 दिन लास्ट करने का पिच होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. But KS Bharat of course is required. Surya Kumar Yadav looks like the most likely option at this point of time for number 5. PP, do you have another opinion from this कि सूर्य कुमार और KS Bharat आने चाहिए या कुछ और है? यार सूर्य कुमार यादव को अगर आप 5 नंबर पे खिलाना चाह रहे हैं तो आप खिला लीजिए, आपकी श्रद्धा है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव आपके 5 नंबर के खिलाड़ी होंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, आई थिंक थोड़ा डेटा और चाहिए होगा उसके लिए. नहीं, सही बात है. That's true. I personally wanted Sarfaraz to be that guy, but Sarfaraz है नहीं स्क्वाड में, तो of course नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है. We need to stop bringing people in based on their recent T20 international and one day international performances, and we need to start keeping a 5 साल 7 साल का road map या timeline जो कि हम लोग रखते थे until very recently. That's true. So अभी हम लोग आ जाते हैं. Of course, I think
प्रिडिक्शन ऑफ द सीरीज, ठीक है, हम लोग मैच के दौरान भी कनेक्ट करेंगे एक बार, अगर टाइम परमिट किया सब लोगों का तो हम लोग दिन के हिसाब से भी विल ट्राई टू जस्ट कैप्चर अ रिव्यू इन अ डे और टू, जब भी हो पाए. बट प्रिडिक्शन फॉर द सीरीज, माय प्रिडिक्शन, आई विल गो फर्स्ट बिकॉज आई वांट. ओके, I don't think Australia being as bad as England were, right? But I still think they will lose 4-0. The matches will go to day 3, day 4, maybe day 5, but they will lose 4-0. आगे हमारे ग्लेन मैकग्रा 4-0 बात ही खत्म हो गया भाई. रोहित भाई, व्हाट डू यू थिंक? मिनिमम 3-0. गलती से कोई मैच बच गया उन लोगों के लिए तो ठीक है, कहीं कोई पट्टा मिल गया. हमको लगता नहीं है. नागपुर नहीं मिलना चाहिए, अहमदाबाद नहीं होना चाहिए, धर्मशाला नहीं होना चाहिए, नाइदर दिल्ली. बट स्टिल मिनिमम 3-0. वर्स्ट अगर इंडिया के लिए होगा तो इट वुड बी 3-1. कहीं कोई एक मैच, जो कि उनके लिए बेस्ट प्रोबेबिलिटी है धर्मशाला, क्योंकि पहले मैच में इनका फुल टीम भी नहीं है. ना इनके पास स्टार्क है, ना मोस्ट प्रोबेबली कैमरून ग्रीन विल नॉट बी बॉलिंग. हाँ, So I बॉलिंग don't बॉलिंग तो मिनिमम नहीं कर रहा है, तो आई डोंट सी देम विनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच नागपुर. बट देन आई थिंक 4-0 इज अ गुड नंबर. अच्छा नंबर लगता है. What is better than one Glenn McGrath? 2 Glenn McGraths. Absolutely. I will hold a more conservative position on this. I think India wins for sure, but the margin of victory I don't see as 3-0 4-0. I think I have a feeling एक match Australian team निकालेगा. So I see this being more of a 2-1 or a 3-1 in India's favor. And the reason I say कि Australia निकाल सकता है एक game is because one thing that we forget about, turning abrasive conditions, इसकी बॉल जब थोड़ा सा पुराना होके रिवर्स करने का भी स्कोप रहता है in those conditions. And the fast bowling attack that Australia is bringing might prove to be a handful for हमारा जो mid lower जो और tail end वाला जो बैट्समैन जो अश्विन और जडेजा जो रन्स निकाल के देता है. A reverse swinging ball in the hands of a Pat Cummins or a Mitchell Starc, a fit Mitchell Starc, or even a Cameron Green for that matter, who's not too bad with that. I think it might tip the scale in at least. I see that happening at least in one of the games. So not 4-0, but 2-1 or 3-1. But imagine Just what eight- Jaydev Unadkat can do with the same ball. नहीं, नहीं, Sure, why not? दो चीज यहाँ पे ला देना लास्ट खत्म करने के लिए. एक चीज बता रहे, पिछले 10 सालों में हम लोग मतलब सिर्फ 3 मैच हारे हैं इंडिया में. 2012 में मॉन्टी पनिशर, ग्राम स्वान जो 2 मैच निकाला, और 1 मैच पुणे का स्टीव कफी और आपका स्टीवन स्मिथ निकाला. अदरवाइज हम कभी कोई मैच इंडिया में नहीं हारे. वन रीजन इज 6, 7, 8 पे जडेजा, अश्विन, रिद्धिमान साहा या ऋषभ पंत जो भी कीपर रहा, हम लोगों को लगातार बेल आउट कर दिया है. रन दिया. और ये किसी के पास नहीं है. बाकी चारों जो बॉलर्स होंगे अपोजिट साइड, दे वुड बी बॉलर. हेजलवुड, स्टार्क, नेथन लियोन, या अगर कोई और स्पिनर है, या आपका कमिंस, ये कोई प्योर बैटिंग नहीं कर पाएंगे इंडिया में. यहां पे हम लोग बहुत भारी पड़ जाते हैं. दैट इज वन पॉइंट जिसको करना है. और यहां पे दूसरी चीज बता रहे हैं, हम लोगों को वी शुड अंडरस्टैंड कि जिस तरह का अपोजिशन बैटिंग है ना, हमको कभी 90 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं करना होगा. गलती सिर्फ एक नहीं करना है, वो 5 बॉलर लेके नहीं जाना है, 4 बॉलर ही चाहिए. लास्ट टाइम भी हम लोग पहले मैच में 5 बॉलर लेके चले गए, छठा पे रिद्धिमान साहा और नीचे 5 बैट्समैन बॉलर, वो नहीं चाहिए. 4 बॉलर हो सकता है. वो जडेजा और अश्विन तो एकदम फिक्स है मेरे हिसाब से. बिल्कुल अक्षर पटेल ग्राउंड के हिसाब से एकदम देख लीजिए. कुलदीप इज अ वेरी गुड चॉइस. और फास्ट बॉलिंग में सिराज या उमेश यादव में से 1 या 2 जरूरत पिच के हिसाब से. लेकिन 5 बॉलर में नहीं फंसना है, वो बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि 5वां बॉलर अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, कभी नहीं बॉलिंग उतना करेगा. 5 ओवर के लिए बॉलिंग नहीं खराब करना है एक आदमी को पूरी तरीके से. दैट्स वन थिंग दैट हैज टू बी सेड. कूल. सो हम लोग देख रहे हैं ये मैच, हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे मैचेस के बीच में भी और टूर्नामेंट के दौरान. विल कीप कमिंग बैक. आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक
the score line will be for the Border Gavaskar Trophy this time. And also, write one word each for Ian Healy and Ian Botham in the comment section. Thanks for tuning in. Keep watching, keep enjoying the game. Thank you. Bye-bye. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.